Dear students, we'll be talking about personalities and certain questions that I have put in front of you. I would like to answer those questions so that you can have a fair bit of idea about what personality is and how does personality affect day-to-day functions that we perform. So the first thing that is we need to understand what personality is itself. So personality has been talked around for ages now. And the first word that came out to describe personality was persona. So persona is your theoretical mask. It is something that you represents yourself with. This is an image that you want to portray to others. So that's why it's called a theoretical mask. Masks used in theaters. So like someone said that the world is a theater and we are artists in it. So the same is reflecting here. And the word persona reflects to the theoretical mask that we are wearing all the time. In terms of definitions, if you look on the slide, it's a unique, dynamic, and stable pattern of thought. How do we know about your personalities? Your thought reflect your personalities. Your emotion reflect your personalities. Your behaviors, the way you socialize with other people, the way you adapt to the environment is your personality. So personality is something. Personality is a concept that is reliant upon many factors. And those factors include your thoughts, your emotions, your behaviors, and your engagement with the environment. This is how we define your personality. For example, a person is very easygoing. A person is very tough. A person is very socialized. A person is assertive. A person is self-centered. Introvert, extroverts. So these are certain words that describe your personality. So personality is a bigger word which contains information about you. The core elements that we will be discussing, it is for a personality is that it's a behavioral structured. It's a behavioral structure shaped equally by internal genetics and external experiences. So the first thing that you need to understand the personality is something that you were born with. Personality is something that you were exposed to. Personality is something which you have learned. So personality has got some elements which can be related to genetics, which can be related to your experiences, the environment, etc. So this was in brief about personality. As you can see here, that personality itself is a combination of heredity, environment, and situation. So since we are talking about the characters that you represent in a given situation, for example, how did you behave when there was a fire? How did you behave in a marriage ceremony? How did you behave in a class? How do you behave while you're on your own, you're alone? So these are certain factors. These are certain factors that we need to look into through your heredity, through the environment, and through the situations. पर्सनैलिटी तीनों चीजों का मजमूआ है बेटा. यू आर बॉर्न विद सर्टेन पर्सनैलिटीज. जिस एनवायरनमेंट में आपका ब्रॉटअप हुआ है उसने आपकी पर्सनैलिटी डेवलप की है. और वो डे टू डे सिचुएशंस है जिसको आप एक्सपोज होते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती चली जाती है. रिमेंबर, हम सब एवोल्यूशन हमारे अंदर हो रही है. वी आर इवॉल्विंग एवरी टाइम. सो दिस इज हाउ वी कीप ऑन इवॉल्विंग. मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम लोग इवॉल्व करते चले जाते हैं. सो ये पर्सनैलिटी के तीन फैक्टर्स है. पर्सनैलिटी इन तीनों एलिमेंट्स से डेवलप होगी, ओरिएंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन characteristics of a person that Carl Jung has described as psychological types. तो कार्ल जंग ने क्या किया था, उसने तीन किस्म के लोगों को आइडेंटिफाई किया.
अब ये इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना और एम्बीवर्ट होना। इंट्रोवर्ट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड होना, अकेले में रहना पसंद करना, अपनी सारी के सारे काम अकेले में करना, अपनी बातें अपने तक महदूद रखना। Extroverts are people who would like to socialize. Extroverts are people who would love to live with other people. These are extroverts. दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं। और तीसरे होते हैं एम्बीवर्ड्स। एम्बीवर्ड्स जो है ये बैलेंस पर्सनालिटीज होंगी, जो कि जिसके अंदर कुछ इंट्रोवर्जन होगा, कुछ एक्सट्रोवर्जन होगा। तो कार्ल जंग के नज़दीक ना ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप तीनों को गौर करें तो बेसिकली कार्ल जंग जो था वो सोशलाइजेशन के गिर्द घूमता हुआ आपको स्टडी कर रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ सोशलाइज यू आर। If you're not socialized, you are introvert. If you're socialized, you're extrovert. And if you are in between somewhere, वो कहता है जी कि आप एम्बीवर्ट थे। तो कार्ल जंग के नज़दीक पर्सनैलिटी को समझने के लिए उसने ये तीन वर्ड्स का सहारा लिया, जिसके ज़रिए उसने आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया। लेकिन दिस इज़ नॉट ऑल। पर्सनैलिटी तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएटिव लोग, अगर क्रिएटिविटी के हिसाब से बात की जाएगी, अगर लैंग्वेज के हिसाब से बात की जाएगी, अगर फियर के वक्त आपके मामलात कैसे थे, अगर गुस्से में आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, ये सारी की सारी चीज़ें हम जब इनको स्टडी करते हैं तो आपको ये वाले पॉइंट्स जो इसने इस्तेमाल किए, इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, अब ये लैंग्वेज के हिसाब से भी हो सकता है, इमोशन के हिसाब से भी हो सकता है, बिहेवियर के हिसाब से भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉल जंग ने ये तीनों जो ट्रेड्स का इस्तेमाल किया है, ये एक्चुअली बहुत ब्रॉड हैं। जब हम इनको ओपन अप करेंगे तो यू विल रियलाइज कि इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन दैट नीड टू बी डन। अगर बिहेवियर के हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास चार किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो नज़र आते हैं पर्सनालिटीज़ के अंदर, और जिसकी चार कैटेगरीज है। बाज़ ने पांच भी मेंशन की हुई हैं। सो बहरहाल देयर आर 5 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स, A B C D। और मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई करें कि वेयर डू यू फॉल इन। और मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन किया था कि यू नीड टू हेल्प मी फाइंड आउट कि विच वन इज़ द पर्सनैलिटी टाइप जो बहुत अच्छी है, जो सबसे अच्छी है। तो ये दो सवालों के जवाब हमने ढूंढने हैं इन 4 पॉइंट्स के अंदर। सो टाइप A B C D। टाइप ए जो है वो competitive है, डीपली obsessed विद, उसके साथ टाइम को बड़ा इंपॉर्टेंस है उसके लिए, वो एग्रेसिव है, वो हाईली सस्पेक्टेबल है टू स्ट्रेस इंक्लूड हेल्थ रिस्क। ये इतना ज़्यादा काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इतना वर्कहोलिक हो जाता है कि अपनी सेहत बर्बाद कर लेता है। कंपेटिटिव है, मुकाबलाबाजी करता है, ऑब्सेस्ड होता है अपने काम से, वर्कहोलिक होता है, टाइम कीपिंग को मैनेज करता है, एग्रेसिव होता है, अपने अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है। तो ज़रा गौर करें ना, ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग अमूमन लीडर्स होते हैं जो हाईली कम्पिटिटिव होते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते और अपने कामों की तरफ लगे रहते हैं। दिस इज ए टाइप ए पर्सनैलिटी जिनके सामने ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। टाइप बी जो है कंपैरेटिवली उससे रिलैक्स्ड होंगे, इजी गोइंग है, पेशेंट हैं, इजी काम हो गया नहीं हुआ, लेस प्रोन टू फ्रैंटिक है, गुस्से ने नहीं आते, बस दे जस्ट कीप ऑन गोइंग। एंड हेल्दी इमोशनली स्टेबल, और इमोशनली स्टेबल होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो टाइप ए वाला था ना, ये हो सकता है कि ये बहुत गुस्से वाला भी हो, क्योंकि इसने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। ये आपके साथ साथ हो सकता है लाड प्यार ना करे, इज बॉर्न लीडर समवेयर, तो इसने तो अपने टारगेट्स को अचीव करना है। लेकिन टाइप बी जो है उससे इस लिहाज से बेहतर हुआ कि इसके अंदर इमोशनल क्वालिटी जो है वो बेहतर है। ये लोगों के इमोशंस को भी समझता है, अपने इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकता है, अपने गुस्से पे काबू पा सकता है, अपने टारगेट्स को आगे पीछे करके अचीव कर सकता है। यानी कि ये प्लान्ड चलता है थोड़ा सा, जो टाइप बी है। टाइप सी की तरफ आ जाए। टाइप सी ये वो लोग हैं जो हाईली ओरिएंटेड हैं, इमोशनली पैसिव हैं, कंप्लाइंट हैं एंड प्रोन टू सुप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स। ये वो लोग हैं जो कि इनको तफसील पसंद होती है चीज़ों के अंदर, दे आर वेरी डीप थिंकर्स, और इमोशनली पैसिव, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते इमोशनली, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स। और सबके उसके साथ साथ इसके अंदर ये होता है कि ये अपने जज्बात पर, अपनी पर्सनैलिटी की जो फीलिंग्स हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज अ टाइप सी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। मायमा, चौथी जो कोमल के है पास वो, प्याज होगा इन केस। बेटे अपने आप को म्यूट रखें प्लीज़, आपसे पहले भी बताया।
ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड। चौथी जो हमारे पास टाइप डी पर्सनैलिटी है, विच इज़ क्रॉनिकली डिस्ट्रेस्ड है, रूटीनली एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस हैं इनके अंदर, सोशल कनेक्शंस को अवॉइड करते हैं कि कहीं उन्हें कोई रिजेक्ट ना कर दे। अब ये चार किस्म के जो हमारे पास बिहेवियरल टाइप के हिसाब से पर्सनैलिटीज़ आई हैं, तो उनमें टाइप ए बी सी डी चार का जिक्र किया। कौन सी बेहतर है दूसरों से? तो अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये बंदा था तो बहुत ही स्मार्ट आदमी था, टारगेट ओरिएंटेड था, लीडर था। लेकिन इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ये अपनी ही मगन लगन में जो है ना, वो मगन रहेगा और अपनी सेहत बर्बाद कर लेगा, दूसरों की बात नहीं सुनेगा, दूसरों को सपोर्ट नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। ये काम, बस इसको काम चाहिए, जैसे मर्जी हो जाए काम। अब ये अचीव तो कर लेगा, अचीव तो कर लेगा, बहुत कुछ अचीव कर लेगा, वही इसके लिए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा, इसके हेल्थ रिस्क आ जाएंगे, इसको इमोशनल रिस्क आ जाएंगे, इसकी मेंटल हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको सपोर्ट कर सकते हैं, टाइप बी इसको सपोर्ट कर सकता है, टाइप सी इसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन लेकिन ये लोग वो हैं जो टाइप ए वाले, वो लोग हैं जो थिंकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम इनको लगा देंगे ना, अगर ये एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे, तो ये दे विल बी वेरी टफ काइंड ऑफ बॉसेस। तो टफ काइंड ऑफ बॉसेस बाज़ औक़ात ह्यूमन बिहेवियर लोगों से काम नहीं ले सकता। लिहाजा उसके लिए यू नीड टू हैव पीपल हु आर इमोशनली स्टेबल, दैट्स व्हाई यू टेंड टू हायर मैनेजर्स। अब मैनेजेरियल टेंडेंसीज किस में हैं, वो किसी और लोग में होंगी। इसी तरीके से टाइप सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। So these are different types. Which personality type is better than other? No personality type is better than another. सारी की सारी personality types अच्छी होती हैं. So it is the situation that actually reflect which personality suits at a given situation. तो फॉर एग्जांपल इमोशनल कंट्रोल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके इमोशनल कंट्रोल्स भी। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट about the four behavioral types, this is quite good कि अगर आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें और ट्राई टू फाइंड आउट कि बिहेवियर्स के हिसाब से पर्सनालिटी की कितनी टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी बिग फाइव ट्रेड मॉडल, इसको कहते हैं ओशन भी बोलते हैं। इसके अंदर पर्सनैलिटी के कुछ एलिमेंट्स जिक्र कर दिए गए हैं कि पर्सनैलिटीज़ के अंदर ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें तो आपको उस पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, हर शख्स के अंदर ओपननेस मौजूद हो सकती है। ओपननेस से क्या मुराद है? ओपननेस से मुराद है आप कितना सोचते हैं, आप कितने क्यूरियस हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये यूं रखिए, यूं जहन में रखिए कि ये एक स्केल है, ओपननेस का एक स्केल है। ज़ीरो को हम समझ लेते हैं कि ये एक मिड लाइन है, मिड पॉइंट है। अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो आपकी ओपननेस कम होगी, अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो आपकी ओपननेस ज़्यादा होगी। तो हर पर्सनैलिटी के अंदर ओपननेस का एलिमेंट पाया जाता है। जिन लोगों के अंदर ओपननेस ज्यादा होगी, हम उन्हें कहेंगे दीज आर ओपन पीपल, दे आर ओपन टू चेंज, दे विल लर्न। ये बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना, नए नए फैशंस अडॉप्ट करेंगे, ये नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते चले जाएंगे जब नए नए आइडियाज़ को इंजॉय करेंगे। और इसके दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो कि इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, वो आज भी ट्रेडिशनल लिबास पहन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज भी वो पुराने रीडर्स की किताब राइटर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज भी पुराने वाले म्यूज़िक सुन रहे हैं। सो उनके लिए चेंज होना, इवॉल्व होना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो हर पर्सनैलिटी के अंदर एक ओपननेस का एलिमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है किसी भी पर्सनैलिटी का, इसको कहते हैं ओपननेस। हम सभी बैक वक्त ओपन भी हैं और हम सभी बैक वक्त लेस ओपन भी हैं या क्लोज्ड भी हैं। सो ओपननेस एक अच्छा ट्रेट है पर्सनैलिटी का। ये एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू टेंड टू बी ओपन। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप ओपन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो बिल्कुल इसी तरीके, यानी कि ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसमें कि इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, आप जिस साइड पे भी हैं। बहरहाल, जो दूसरा एलिमेंट है इसके अंदर कॉन्साइशियसनेस का है, और वो कहता है कि आपके
जो एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, प्लानिंग है, गोल ड्रिवन। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसाइचियस होते हैं। वो अपने कॉन्शियस के तहत काम करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। वो हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लो कि अब आप सभी लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ लोग वो जो ज़्यादा कॉन्साइटस हैं, वो क्या करते हैं कि दे वर्क हार्ड। वो अपनी इसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसके साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने खाली पास करना जिनका मकसद है। तो शायद उनके अंदर ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला जो ट्रेट है पर्सनैलिटी का, वो उतना ज़्यादा नहीं है। उनके लिए ये वाली टारगेट, ये एजुकेशन का ये वाला टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे दे डू वांट अ पीस ऑफ पेपर, अ डिग्री। सो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग कम मोटिवेटेड होंगे। एक्स्ट्रोवर्जन, ये ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर असर्टिव कम्युनिकेशन होता है, पॉजिटिव असर्टिव कम्युनिकेशन, दूसरों को कायल कर सकते हैं। दे आर वेरी सोशल, दे आर टॉकेटिव इन नेचर एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इनके अंदर एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर इसका भी एक हम सेंट्रल पॉइंट जीरो लगा दें, तो एक साइड पे एक्स्ट्रावर्जन आ जाएगी, एक तरफ आ जाएगी इंट्रावर्जन। ये आपको याद होगा, हमने ये मैं जहाँ से आपको बात बता रहा हूँ, हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर। मुझे जहन में उसका नाम नहीं है। देयर इज अ मिड पॉइंट जिसको आप जीरो कहते हैं। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रावर्जन का ग्राफ बनाएंगे, तो जीरो पॉइंट से राइट साइड पे चले जाएंगे तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, जीरो पॉइंट से नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे तो आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। सो ये आपके एक्स्ट्रा वर्जन, आपकी एबिलिटी टू सोशलाइज को फाइंड आउट करता है। ये हर बंदे में पाई जाती है। ठीक है, हर बंदे के अंदर ओपननेस भी है, कंसाइटिवनेस, ये पांचों फैक्टर हर बंदे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी नौइयत जो है वो मुख्तलिफ है। देन वी हैव गॉट एग्रीएबलनेस, हाईली हाई लेवल ऑफ सोशल कंप्लाइंस, ट्रस्टिंग नेचर, एम्पथी एंड हेल्पफुल टीम कोऑपरेशन। क्या आप हर चीज से एग्री कर जाते हैं, नेचर को ट्रस्ट करते हैं, एम्पथी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हर बंदा आपको कायल कर लेता है। भाई हर बंदा अगर आपको कायल कर लेता है, इसका मतलब है यू डोंट हैव एन आइडेंटिटी। तो बैक वक्त ये चीज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपको हर चीज पे कायल किया जा सकता है, दैट कैन बी वीकनेस एज वेल। तो यू शुड हैव योर सर्टेन पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको। और एग्रीएबल कौन होता है? जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो जहां पर एग्रीएबलनेस एक अच्छा ट्रेट है, उसी तरीके से ये बैक वक्त ये एक नेगेटिव ट्रेट में भी चला जाता है। सो ये एक स्केल है। मुझे जहन में लफ्ज आ गया, स्केल है। तो ये ओपननेस का, कंसाइसियसनेस का, एक्स्ट्रावर्जन का, एग्रीएबलनेस का, न्यूरोटिसिज्म का, ये स्केल्स हैं बेटे। ठीक है, दे हैव गॉट अ मीन वैल्यू, उसके बाद हायर वैल्यूज हैं और लोअर वैल्यूज हैं। तो लोअर वैल्यूज में जब आप आएंगे, तो जैसे आप इमोशनल स्टेबिलिटी न्यूरोटिसिज्म में देखते हैं, द स्केल ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन वर्सेस रिमेनिंग काम एंड सिक्योर। अब इसके दो लेवल्स हैं। न्यूरोटिसिज्म के दो लेवल्स हैं। एक लेवल वो है जहां पर आपके अंदर एंजाइटी हो जाती है, आपको काम करने का इतना ज़्यादा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप एकदम ओवरचार्ज्ड हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके इमोशन आपके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करने देंगे आपको। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि गिवन सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल, ईरान के अंदर जंग लगी हुई है इस वक्त। अब ईरान की जो जंग है, उसके नतीजे में दो किस्म के बिहेवियर्स वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज, उन्होंने कहा जी हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं, लो जी ये पकड़े हमारा, हमने आपको लिख के दे दिया कि हम जिहाद में हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इमोशंस को यूटिलाइज करते हुए उस गिवन टाइम के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उसी जगह पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मरने से डर रहे होंगे, जो कि जख्मी होने से डर रहे होंगे, जो कि अपने प्यारों को लूज करने से डर रहे होंगे। लिहाजा एट एनी गिवन टाइम हमारे पास ये ट्रेट्स मुख्तलिफ रंगों में नज़र आते हैं। कुछ जो है वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ जो है वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो हम जब इसको मैयर करते हैं एक स्केल के ऊपर, तो बैक वक्त हमारे पास दो पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो इवॉल्व हो रही होती हैं।
कुछ लेस इमोशनल स्टेबल, कुछ हाईली इमोशनली स्टेबल, बिल्कुल कुछ बहुत ज़्यादा एग्रीएबल, कुछ कम एग्रीएबल, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, कुछ बहुत कम एक्सट्रोवर्ट, कुछ बहुत ज़्यादा कंसाइचियस, कुछ बहुत कम, और बिल्कुल कुछ बहुत ज़्यादा ओपन और कुछ बहुत ज़्यादा बहुत कम ओपन, ज़्यादा ओपन और कम ओपन। सो ये एक बड़ा एक खूबसूरत पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ उसके ट्रेड्स का इजहार किया गया था। आई वुड लाइक कि यू गो थ्रू इट, और इसको आप आइडेंटिफाई करें कि विच पर्सनैलिटी टाइप डू यू बिलोंग टू। with this we move on to the second part, और second part के लिए I would like कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करें, so that we are continuing from the exact position where we are right now.